Good morning. Today's our topic is planning process. That is most important from this case studies point of view as well as for one mark questions. As you can see, this is a chart of showing the planning process which include 7 steps. First step is setting objectives. Second, developing premises. Third, identifying alternative course of action. Fourth, evaluating alternative course, selecting an alternative, that is fifth step. Sixth, implementing the plan, and seventh is follow-up action. We study it one by one. The first is setting the objective. Setting the objective, as we said it, if someone having some task, only then they have to make a plan. So without objective, without task, without target, there is no use of planning. So first of all we have to set the objective, what we have to achieve. So objectives are those endpoints for whose attainment all the activities are undertaken. That is also one for 1 mark question, that is important. What is objective? Objectives are those endpoints for whose attainment all the activities are undertaken. Like you are doing the study, you should have some objective in your life now, what you want to do after 12th graduation. From that achievement of that objective you are doing your study. If you are not having an objective, so you will not be successful. You will get just 30%, 50%, 40% mark. You set the objective, what do you want? So first of all is set the objective. These are the end point. In the planning process, objectives are determined and defined first of all, so that all the employees concerned can be informed about them to get their complete cooperation. So ऑब्जेक्टिव पहले डिसाइड किया जाता है ताकि सब लोगों को काम दिया जा सके और वो उस काम को पूरी तन्मयता से करें. ऑब्जेक्टिव्स हमने पहले चैप्टर में पढ़े थे. यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स 3 होते हैं, लेकिन इनकी एक हायरार्की होगी, सीक्वेंस होना चाहिए. लाइक पहले ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स अचीव किए जाने चाहिए, उसके बाद डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव्स और फिर लास्ट में इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स. यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है. कंपनी अपनी सेल्स बढ़ाना चाहता है 2000 करोड़ से, and this is the organizational objectives. In this context, the objectives of different departments will be determined. For example, the production department will come to know the amount of production of each product. Sales बढ़ाने के लिए प्रोडक्शन करना पड़ेगा, so production department का objective भी set होना चाहिए. In the end, all the employees of different departments will be told about it and what is expected of them. तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सेट किया जाएगा, फिर सब डिपार्टमेंट्स के ऑब्जेक्टिव सेट किए जाएंगे, फिर देखा जाएगा कि सब अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर रहे हैं या नहीं. सेकंड, डेवलपिंग प्रीमिसेस. लाइक हम सेल्स बढ़ाना चाहते हैं 2000 करोड़, बट क्या ये पॉसिबल है इन नियरेस्ट फ्यूचर में? और नियरेस्ट फ्यूचर में हमारी कौन सी इंटरनल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं या कौन सी एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जिसको ध्यान में रखना ज़रूरी है. क्योंकि अगर हम उसको ध्यान में नहीं रखेंगे तो हमारे जो प्लान्स हैं वो सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं. तो प्लान सक्सेसफुल तभी होगा जब हम कुछ प्रीमिसेस डेवलप करेंगे, मीन्स उन हर्डल्स के बारे में सोचेंगे जो हमारे प्लान में रुकावट पैदा कर सकते हैं. उन रुकावटों को हम बोलते हैं प्रीमिसेस. सो एक डेफिनेशन दी हुई है, इट रेफर्स टू मेक सर्टेन अजम्पशंस अबाउट द फ्यूचर. प्रीमिसेस का मतलब है हम फ्यूचर के लिए कुछ अजम्पशंस लेके चल रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो हम ऐसे प्लान को मोल्ड करेंगे, इस तरह से हुआ तो हम ये प्लान इस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे. तो दीज आर द अजम्पशंस रिलेटेड टू द फ्यूचर. And these assumptions influence the possible results of different alternatives. So the basis of plannings are those factors which influence the possible results of different alternatives. And these factors may be internal premises, means internal factor भी हो सकते हैं, external भी हो सकते हैं. internal कौन से factor हैं जो हमारे plan को affect कर सकते हैं sales बढ़ाने के? कैपिटल कम हो सकती है, लेबर नहीं मिलेगा हमें, रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा है, मशीनरी नहीं है हमारे पास, ये कुछ प्रॉब्लम्स इंटरनल हो सकती हैं. एक्सटर्नल में क्या आएगा? जो हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वो एक्सटर्नल प्रीमिसेस है. लाइक गवर्नमेंट की पॉलिसी सपोर्ट नहीं कर रही इतनी सेल्स बढ़ाने को, बिजनेस कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, टेस्ट ऑफ कस्टमर्स वो लाइक ही नहीं कर रहा है आपके प्रोडक्ट को, तो सेल्स कैसे होगी? एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, आपको लोन नहीं मिल पा रहा है, रेट ऑफ टैक्सेस, प्रॉफिट पे ज़्यादा टैक्स देने पड़ रहे हैं, ये कुछ एक्सटर्नल प्रीमिसेस है. सो थर्ड वन इज़ आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन. ठीक है, हमने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया कि हमने ये करना है. दूसरा, हमने फ्यूचर को स्टडी भी कर लिया कि ये प्रॉब्लम्स आएगी, हम इसको इस तरह से फेस कर लेंगे. नाउ थर्ड, उस काम को
करने के लिए हमारे पास बहुत सारे अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन में रास्ते हो सकते हैं, और हर रास्ते को तो इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। उन सब रास्तों को हमें पहले ढूंढना है कि हमारे पास उस काम को, उस ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के कौन कौन से रास्ते हो सकते हैं। तो वी हैव टू फाइंड आउट द डिफरेंट वेज टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स। On the basis of the objectives of organizations and the limitation of planning, alternative course of doing a particular work can be discovered on the basis of objectives of organizations and on the by keeping in mind the limitation of plannings. After these, keeping in mind these two factors, we have to find out different ways to achieve our objectives. For example, if an organization has the objectives of expanding its business, एक बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं अपना, बिजनेस बढ़ाने के बहुत सारे यहाँ 4 रास्ते दिए हुए हैं। फर्स्ट, बाय एक्सपेंडिंग द एग्जिस्टिंग बिजनेस, अपने इसी बिजनेस को बढ़ा दे। सेकेंड हो सकता है बाय एंटरिंग अदर एरियाज ऑफ प्रोडक्शन, कोई और प्रोडक्शन शुरू कर दें। थर्ड, बाय एंटरिंग इनटू सम कोलैबोरेशन, किसी और कंपनी के साथ टाई अप कर ले। या फोर्थ, बाय टेकिंग ओवर सम अदर बिजनेस एंटरप्राइजेस, किसी और एंटरप्राइजेस को खरीद ले। तो ये 4 अल्टरनेटिव हो सकते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। तो हमने अल्टरनेट ढूंढ लिए। अब सारे अल्टरनेट तो अच्छे नहीं हो सकते हमारे लिए, हम उन अल्टरनेटिव्स को इवैल्यूएट करेंगे कि कौन सा अल्टरनेटिव हमारे लिए बेटर है। ऑल दोज अल्टरनेटिव कोर्सेज विच आर अप टू द एक्सपेक्टेशन ऑफ द मिनिमम प्रीलिमिनरी क्राइटेरिया, which criteria, minimum preliminary criteria are selected for intensive study. And now we will study what is minimum preliminary criteria. That is also important for case studies. Minimum preliminary criteria means 4 या रास्ते हमें पता है, उनमें से मिनिमम हमें देखना है कि कौन उनमें मिनिमम क्या चीज़ होनी चाहिए। That is minimum expectations from these alternatives. So alternatives, in fact it is not as difficult to find out alternative course as it is to reduce the list of alternative course. रास्ते तो बहुत मिल जाएंगे लेकिन सही रास्ता चुनना मुश्किल काम है। Alternative courses should be the minimum possible so that they can be deeply analyzed. हमारे पास 10 रास्ते हैं लेकिन 10 में से 2-3 ऐसे होंगे जो हमारे काम के ही नहीं है, तो उनको तो हमें एलिमिनेट करना है ताकि उसको एनालाइज करने में हम टाइम वेस्ट ना करें। टू रिड्यूस द साइज़ ऑफ द लिस्ट ऑफ अल्टरनेटिव कोर्सेज, इन 10 रास्तों में से बिल्कुल वेस्ट वाले रास्ते ख़त्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? टू रिड्यूस द साइज़ ऑफ द लिस्ट ऑफ अल्टरनेटिव कोर्सेज अ मिनिमम प्रिलिमिनरी क्राइटेरिया शुड बी डिसाइडेड अपॉन, and those alternatives which don't fulfill the minimum criteria should be deleted from the list in the very beginning. मीन्स 10 रास्ते देख रहे हैं जो बिल्कुल यूजलेस हैं, उन सबको हमें हटा देना होगा और उसके लिए हमें अपने मिनिमम सिलेक्शन लेवल या मिनिमम सिलेक्शन का क्राइटेरिया सिलेक्ट करना पड़ेगा। एग्जाम्पल दिया हुआ है, इफ़ द मिनिमम कैपिटल लिमिट इज़ 10 करोड़, ऑल द अल्टरनेटिव कोर्स लेस देन दैट विल बी लेफ्ट आउट। इफ़ द मिनिमम कैपिटल लिमिट इज़ 10 करोड़, हमारी कैपिटल लिमिट 10 करोड़ की है, 10 करोड़ तक के प्रोजेक्ट्स को तो हम स्टडी कर सकते हैं, लेकिन जहाँ 10 करोड़ से ज़्यादा की कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बात आएगी हम उन प्रोजेक्ट्स को नेगलेक्ट कर देंगे। तो हमने एक मिनिमम सिलेक्शन क्राइटेरिया रख लिया जिससे हमारे अल्टरनेटिव्स कम से कम हो जाएं और उन्हीं अल्टरनेटिव्स पर हम फोकस करें जो हमारे रीच में हैं। एग्जाम्पल इज़ देयर, फॉर एग्जाम्पल, a particular alternative course can be highly profitable but it requires investments of more capital and has a long gestation period. मीन्स एक ऐसी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है जहाँ प्रॉफिट तो ज़्यादा है लेकिन पैसा बहुत लग रहा है, और लॉन्ग गेस्टेशन पीरियड मीन्स बहुत लंबे समय के बाद प्रॉफिट्स मिलने वाले हैं। और दूसरा अल्टरनेटिव है जहाँ पे कैपिटल कम लग रही है, शॉर्ट गेस्टेशन पीरियड में जल्दी प्रॉफिट्स हो जाएंगे एंड टू इल्ड प्रॉफिट्स बट द प्रॉफिट्स आर नॉट सफिशिएंट। तो 2 अल्टरनेटिव्स है। अब इन दोनों के मिक्सचर्स को द प्लानर्स शुड इवॉल्व अ न्यू अल्टरनेटिव कोर्स बाय अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट अल्टरनेटिव कोर्सेज। अब अल्टरनेटिव कोर्स को हम स्टडी कर चुके हैं, कौन सा बेटर है, उसके बाद सिलेक्ट कर लेंगे वन बेस्ट अल्टरनेटिव। आफ्टर अ केयरफुल एनालिसिस ऑफ डिफरेंट अल्टरनेटिव्स, बेस्ट वन शुड बी सिलेक्टेड एंड कीपिंग व्यू द अनसर्टेनिटीज ऑफ फ्यूचर, इट इज़ justifiable to select more than one good alternative course। तो सिर्फ एक ही कोर्स सिलेक्ट नहीं करना है क्योंकि अभी इतना टाइम आप वेस्ट कर ही रहे हो, आपको पता भी है कि कौन सा अल्टरनेटिव ज़्यादा बेटर है, तो उन सब अल्टरनेटिव्स को एक सीक्वेंस दे देना कि ये फर्स्ट अल्टरनेटिव होगा, अगर ये प्लान फेल हो जाएगा तो सेकंड ये होगा, हमारा सेकंड प्लान इम्प्लीमेंट करेंगे, फिर थर्ड। इस तरह से हमें 2-3 बेटर प्लान्स को सीक्वेंस में रख लेना है
In case the future forecast proves wrong and the first alternative course fails, the reserve one can immediately be brought into operations and failure can be averted. ठीक है, फेलियर्स को रोका जा सकता है, अल्टरनेट कोर्स ज़रूर बना के रखना है। सिक्स्थ होगा, हमने जो बेटर प्लान सेलेक्ट किया उसको इम्प्लीमेंट करना होता है, डैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। सिर्फ प्लानिंग से सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं, प्लान हमेशा सक्सेसफुल तभी होंगे जब इम्प्लीमेंट किया जाए, सोचने से काम नहीं बनते हैं, करना पड़ेगा। इम्प्लीमेंटिंग द प्लान, after having decided the chief plan, the subsidiary plans they are to be implemented. After implementing the plans, the sequence of different activities, this is important line for case studies. Sometime it may be asked which is the step of planning, so you have to find out the keywords like after implementing the plans, the sequence of different activities has to be decided. In other words, it is decided as to who will do a particular job and at what time. So that is implementation. Really we are going to implement the plan. सिर्फ प्लान बता दिया, लोग करने लगे हैं, उससे काम नहीं चलने वाला। मैनेजर को फिर से अलर्ट रहना पड़ेगा कि जो मैंने काम असाइन किया है वो सब उस ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा है, मेरा प्लान सक्सेसफुल हो रहा है कि नहीं, वो प्रेजेंट सिचुएशन में इम्प्लीमेंटेबल है या नहीं, अगर नहीं है तो कहाँ पे क्या चेंजेस करने पड़ेंगे। डैट इज़ कॉल्ड फॉलो अप एक्शन, मीन्स आपको बिल्कुल चेक रखना पड़ेगा। Plans are formulated for future which is uncertain. It is of great importance that there is a constant review. That is important. There is a constant review of plans. हर समय इसको देखना होगा, so as to ensure success in the uncertain future. आपको क्योंकि फ्यूचर अनसर्टेन है, आपने फ्यूचर के लिए प्लान बना दिया है, इम्प्लीमेंट भी कर दिया, लेकिन लगातार वॉच करना पड़ेगा कि वो सक्सेसफुल हो रहा है या नहीं हो रहा है। There is a constant review of plans so as to ensure success in the uncertain future. The moment there appears to be changes in the assumptions on which the plan are based, then there should be corresponding changes in the plans also. In this way we can say planning is a continuously moving process. So this is the last and most important step of planning. Again we will go and see this chart again. So these are the steps of planning process.